Class 7 Geography chapter number 4, topic weather and climate. It is going to rain today. Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? তো বলছে যখন ওয়ান ডে ম্যাচ হয় কতজন কতরা তারা একটু দে আস্ক দেমসেলস জিজ্ঞেস করে আজকে বৃষ্টি হবে কি না হবে, বিকজ ইফ ইট রেইনস তাহলে ম্যাচ তো ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে, তাই না? আর ধূপ নিকলেগা কি নেই, এইভাবে তারা দে আস্ক কোয়েশ্চেন্স, দে গেস ইচ আদার্স opinions. If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. তা বলছে যদি আমাদের বডি একটা রেডিও হয় আর আমাদের মাইন্ড হচ্ছে একটা স্পিকার, তাহলে ওয়েদার কি হচ্ছে? ওয়েদার ऐसा चीज है which fiddles মানে always keeps changing. হ্যাঁ, और रेगुलेटर যেরকম ফ্যানের রেগুলেটর কম ज़्यादा कर सकते हैं, সেরকম ওয়েদারটাও কিন্তু আপ ডাউন সবসময় হতে থাকে। Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. Underline this. So what is weather? घंटा पर घंटा, हर घंटे घंटे में व दिन दिन में जो जैसा आपका अवस्था रहता है, कंडीशन माने हवा कैसा है, धूप कैसा है, बादल कैसे हैं, तो ये पूरा जो कंडीशंस है एगलो की हमरा बोली वेदर। A hot or humid weather may make one irritable. तो बहुत गर्मी वाला और ह्यूमिड मीन्स चिपचिपा, जैसे बरसात में होता है तो उससे बहुत खराब लगता है किसी को। A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. तो अगर सुंदर वेदर हो आपका, बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा चल रहा बढ़िया सा, ज़्यादा गर्मी नहीं है, তখন কিন্তু আমরা অনেক সময় আমরা बाहर जाने का प्लान भी कर देते हैं। हाँ भाई आज मौसम बहुत अच्छा है, चलते हैं बाहर। बहुत समय क्या होता है यदि मौसम खराब है, अरे भाई आज वेदर ठीक नहीं है, आज नहीं जाएंगे, आज के আমরা যাবো না, আজকে ছেড়ে দাও। Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather conditions of a place for a longer period of time represents the climate of a place. तो वेदर आपका क्या होता है, हमेशा দিন দিন में চেঞ্জ হয়ে जाता है। হয়তো সকাল দিকে রোদ বেরিয়ে হচ্ছে, বিকাল দিকে আবার কালো ঘড়াম গুড়ুম মেঘ চলে এলো, জোর হাওয়া দিতে লাগলো और जोर से बारिश होने लगा। ऐसा कई बार होता है ना। तो किसी भी जगह पे কোনো জায়গায় एवरेज माने एवरेज তোরা ম্যাথ से করেছিস, एवरेज मतलब मोटामोटी जो ज्यादातर যেটা বেশিরভাগ হয়, कैसा वेदर कंडीशन होता है किसी जगह का बहुत लंबे समय तक, অনেক দিন পর্যন্ত, অনেক সময় পর্যন্ত, সেটাকে আমরা বলি क्लाइमेट। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लाइमेट। ना क्लाइमेट एंड वेदर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, और मोटा मोटी एवरेज वेदर जब बहुत लंबे समय तक रहता है उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट। अच्छा, डू यू नो, देखो, you will be surprised to know that the earth receives only 1 in 2 to a power a quarter 3 3 6 3 9 parts of the sun's energy। तो सन का इतना पार्ट का खाली एक पार्ट, এই যে দেওয়া আছে এটা আমরা যদি বলি 2000 বিলিয়ন আমরা বলতে পারি, 2000 বিলিয়ন, 1 10 100,000 10,000 मिलियन, 2000 मिलियन, इसका खाली एक पार्ट सूरज का रोशनी जो है पूरा हमारे अर्थ पृथ्वी में पाता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो जो टेम्परेचर हम लोग फील करते हैं गर्मी वगैरह, वो किसका टेम्परेचर? वो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। मार्क दिस। So what is temperature? The degree of hotness and coldness of the air. হাওয়াটা কত গরম বা কত ঠান্ডা, এটা কি বলা হচ্ছে? টেম্পারেচার। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. तो ये दिन रात में भी बदलता है और सीजन सीजन में भी बदलता है आपका। Summers are hotter than winters। तो আমরা জানি গরমকালে বেশি গরম হয় শীতকাল থেকে। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. What is insolation? Insolation is the incoming solar energy
इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ मीन्स जो पृथ्वी रोक लेता है। कौन रोकता है पृथ्वी का? एटमोस्फेयर। সূর্যের আলোটা হিটটা আসে পৃথিবীর উপরে, पृथ्वी गरम হয়, पृथ्वी गर्म होता है और गर्म होकर आपका हीट निकलता है पृथ्वी से, और कुछ हीट आपका एटमोस्फेयर से बाहर चला जाता है। अब किछु हीटটা আমাদের থেকে যায়, जो एटमोस्फेयर का थिक लेयर एज अ ब्लैंकेट ऑल अराउंड द अर्थ इट इज प्रेजेंट, तो कुछ हीट आपका एटमोस्फेयर के अंदर रह जाता है, निकलता नहीं है। दैट इज नोन एज इंसुलेशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एटमोस्फेयर हट जाएगा तो पूरा हीट निकल जाएगा पृथ्वी का, और पृथ्वी एकदम ठंडा हो जाए एंड ऑल विल फ्रीज एंड डाई। The amount of insulation decreases from the equator towards the poles. Therefore, the temperature decreases in the same manner. तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाता है, वहां पर ठंडा धीरे धीरे आगे आगे बढ़ जाता है आपका। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो? तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों पोल में हमेशा बर्फ रहता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, अनेक कम टेम्परेचर था कि इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई it would become too warm for some crops to grow. तो যদি পৃথিবী টেম্পারেচারটা বেশি বেড়ে যায়, পৃথিবী বেশি গরম হয়ে যাবে और बहुत सारे फसल आपके इतनी गर्मी में नहीं उगेंगे, गाछपाला अनेक হবে না। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। तो शहरों में टेम्परेचर गांव से ज्यादा होता है ना। द कॉन्क्रीट एंड द मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द asphalt ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दैट नाइट। तो सारा चीज शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, पक्के रोड होते हैं, तो सब गर्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी, और गर्म होके रात में जल्दी ठंडा नहीं होता है, रात में ठंडा हो जाता है और उसका जो गर्मी है वो निकलता है, जिससे आपका टेम्परेचर ज्यादा गर्म होता है। और गांव में क्या होता है, इतने सारे रोड पक्के मकान नहीं होते उतने ज्यादा, तो वहां पर उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। तो गांव में इतने क्राउडेड मीन्स एकदम नजदीक नजदीक सटे हुए एकदम काछे काछे जो बड़े बड़े बिल्डिंग गुलो था के, उससे क्या बिल्डिंग गर्म हो जाता है। और बिल्डिंग के अंदर भी देखना, आप घर के अंदर जाओ, घर के अंदर गर्मी लगे आपको, गर्म रहेगा, बाहर ठंडा। आप लोग यहाँ क्लासरूम में क्लास करने आओगे, जैसे शाम को रात में क्लास करते हो, बाहर जाओगे देखो आपको ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि अंदर गर्मी अटक जाता है, बेतुरे गरम हीट अटके जाए, इससे भी आपका टेम्परेचर राइज होता है सिटीज में। अच्छा, डू यू नोट देखो, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो प्लीज मार्क दिस अप, इंपॉर्टेंट अच्छे गुलो। नेक्स्ट, एयर प्रेशर। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमेशा जो हमारा एटमोस्फेयर है ऊपर, वो हमेशा हमारे ऊपर दबाव, प्रेशर डालता है, हमेशा, ऑलवेज। चाहे आप घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, बाहर होने से ज्यादा होगा, घर के अंदर थोड़ा कम होगा। However, we don't even feel it, लेकिन हमको ये महसूस नहीं होता है कि कोई दबा रहा ऊपर से। This is because the air pressure presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. तो एयर क्या करता है, चारों तरफ से हमको प्रेशर देता है, ऊपर से, साइड से, राइट लेफ्ट, और हमारा बॉडी भी उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ निकलता है। हमारे शरीर से भी, हमारे शरीर मध्य से क्यों प्रेशर बाहर की तरफ आता है, तो दोनों से वो बैलेंस हो जाता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth's surface. So mark this up, underline. So what is air pressure? Air pressure वो प्रेशर है, प्रेशर माने की चाप, ताई तो जैसे आप किसी चीज को दबाते हो आप, तो ये भी एक प्रेशर है जो कि जो हमारा एटमोस्फेयर है या हवा जो है, एयर है, वो पृथ्वी के ऊपर डालता है। As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. तो যেমন যেমন আমরা ऊपर दिखे যাব, ऊपर जाएंगे हम, उतना प्रेशर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कम होता जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। हॉरिजॉन्टली मीन्स लंबे में, लंबाई, लेफ्ट टू राइट। वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स ऊपर से नीचे। तो जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे प्रेशर हमारा कम होता जाएगा, प्रेशर कमते থাকবে। और हॉरिजॉन्टली मीन्स सपोज यहां से आप सीधा खेत में जाओ या घर से बाहर जाओ आप हॉरिजॉन्टली,
तो वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी जगह के टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर अगर गर्म होगा কোনো জায়গায় যদি গরম বেশি হবে, গরম होने से क्या होता है, গরम हवा ऊपर को जाता है, গরম হাওয়া হালকা হয় উপর দিকে যায়, সেখানে প্রেসারটা কিন্তু কম হবে, আর যেখানে ঠান্ডা হবে সেখানে প্রেসারটা বেশি হবে। এ দেখো, in areas where temperature is high the air gets heated and rises, this creates a low pressure area। तो जहां पर गर्म होता है, गर्म हवा हीट होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर चले जाए সেখানে लो प्रेशर है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। तो जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर क्लाउडी स्काईज, बादल वाले होंगे, आकाशे बादल होंगे, एवं वेट वेदर, गीला गीला वेदर होगा वहां का। In areas having low temperature the air is cold, it is therefore heavy, heavy air sinks and creates a high pressure area। high pressure is associated with clear and sunny skies। तो जहां पर ठंडा होगा वहां पर हवा भारी होगा, हवा नीचे की तरफ रहेगा, वहां पर साफ आकाश रहेगा। देखना जब सर्दियां आती हैं, जहां शीतकाल হয় আকাশ পরিষ্কার থাকে, দেখবে শীতকালে लो प्रेशर থাকে आकाश পরিষ্কার থাকে, एकदम नील नील आकाश देखबे। अभी भी आप लोग कभी कभी देख सकते हो आप, ठीक है ना, ठंडा ठंडा पड़ने लगा है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। और हवा भी इसी की वजह से तैयार होता है, और हवा সবসময় কি हाई प्रेशर থেকে लो प्रेशर एरियाते जाए। हाई प्रेशर यानी आपका जहां पर ठंडा है, लो प्रेशर वहां पर हवा गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, और हवा गर्म होकर जब ऊपर चला जाएगा, ऊपर चले जाए तখন उसकी जगह पर ठंडा हवा आ जाएगा नीचे। इस तरीके से देयर इज अ साइकिल ऑफ विंड करेंट्स और आपका हवा बनता है। इसको मार्क करके रखना आप हमेशा, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। नेक्स्ट वी हैव विंड। The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind। So what is wind? जब आपका हवा हाई प्रेशर एरिया से, हाई प्रेशर एरिया থেকে হাওয়াটা লো প্রেশার এরিয়া থেকে আসছে তখন wind বলা হয়। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavements or uproots trees during a storm। तो बहुत बार देखा आपने, हवा से आपके पत्ते हिलते हैं, और बहुत जोर से हवा देने से आपके पेड़ उखड़ भी जाते हैं, गाछগুলো उपड़े जाए। Sometimes when the wind blows gently you can even see it blowing away smoke or fine dust। कभी कभी हल्के से हवा चलता तो देख सकते भाई धुआं उड़ा के लेके जा रहा है, धुआं उड़ाচ্ছে বা কিছু ডাস্ট পার্টিকলসগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पर देखो बहुत सारे फैक्ट्रियां है ना, फैक्ट्रीज। तो अब अगर मेरे छत के ऊपर से भी खड़े होकर देखो फैक्ट्री का जो धुआं है चिमनी का, वो भी देखोगे हवा की वजह से आपका उड़ के किस तरफ को जा रहा है। Sometimes when the wind blows gently, এটা দেখলাম, at times wind can be so strong that it is difficult to walk against it। কখনো কখনো হাওয়াটা এত স্পিড হয়, এত জোর হয় कि हम उसके सामने की तरफ नहीं चल सकते हैं, এত स्ट्रांग হয়। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day। तो देखा होगा आपने, कहीं बहुत हवा चल रहा तो आप छाता पकड़ के नहीं रख सकते, छाता उलट जाता है ना, छाता उल्टी ही जाए। Think of some other examples when strong winds have created problems for you। Winds can be broadly divided into three types, very important topic। Now there are three types of winds। How many types? Three types। First is permanent winds। The trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds। So you can see the figure 4.4। Now three types, what are the different types of permanent winds? Trade winds, westerlies, easterlies। Westerlies come from west direction, easterlies east direction। You can see the picture also। नीचे की तरफ आपको दिख रहा है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, उसके नीचे आपको दिखेगा पोलर ईस्टर्लीज, सिमिलरली ऊपर को दिखेगा आपको पोलर ईस्टर्लीज, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, राइट। These blow constantly throughout the year in a particular direction। तो ये हवाटा सारा बछर पूरा साल आपका चलता रहता है किसी एक निर्दिष्ट फिक्स डायरेक्शन की तरफ। ऐसा नहीं हमेशा ये लोग चेंज करते हैं, कभी कभी चेंज होता है, लेकिन ज्यादातर बेसिभाग एगुलो फिक्स डायरेक्शन में मूव करे। नंबर 2 सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। तो ये जो विंड है, ये जो हवा है, अलग अलग सीजन में अपना डायरेक्शन बदल देते हैं, आलदा आलदा सीजन डायरेक्शनটা चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून इन इंडिया, मॉनसून जो
ये हवा बारिश लेके आते हैं। नंबर 3 लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, किसी भी छोटी जगह में किसी फिक्स दिन में या आपके समय में आपका ये हवा चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, यू हैव स्टडीड इन साइंस ऑल्सो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। दिन में आपका दिने बुलाई की है, लैंड आपका जल्दी गर्म होता है, लैंड ताती गर्म है, सी वाटर आपका देर से गर्म होता है। तो लैंड का हवा गर्म होकर कहाँ जाता है, सी की तरफ जाता है, और सी का ठंडा हवा लैंड की तरफ आता है दिन में। रात में उल्टा, रात में आपका सी का गर्म होता है, सी जल्दी ठंडा नहीं होता है, समुद्र का पानी देर से गर्म होता ठंडा होता है। तो समुद्र का जो गर्म हवा है लैंड में आएगा और लैंड का ठंडा हवा आपका सी में जाएगा। दीज आर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज कॉल्ड लू। तो लू कौन चले? गर्मी के टाइम में, वेरी हॉट समर, द हॉट विंड इज नोन एज लू। वी हैव अ बॉक्स साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी। साइक्लोन यानी पूरा जेटा बांग्ला बोली झड़ जल है ना, आंधी तूफान। तो दिख रहा है आपको पिक्चर में, पूरा खेत वेत पूरा नष्ट हो गया, घर बार सब टूट गया है, राइट। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। तो ओडिशा जो कि समुद्र के किनारे एक देश है, हमारे इंडिया में ही है, तो उसमें वहां पर बहुत साइक्लोन आने का चांस रहता है, राइट। ऑन 17-18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो इस साल आपका 5 जिलों में आपका साइक्लोन आया था। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन 29 अक्टूबर 1999 दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट। डिवास्टेटेड यानी बहुत जगहों में उसने क्षति किया, अनेक जगह क्षति হয়েছিল। द डैमेजेस कॉज वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। तो 3 कारण से आपका क्षति हुआ था, 3 कारणों হয়েছিল क्षति। विंड वेलोसिटी यानी विंड का स्पीड, रेन बारिश, एंड टाइडल सर्ज। टाइडल सर्ज यानी समुद्र का जो ढेव होता है, लहर होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा लेव जो लहर है वो आया था, जिससे आपका किनारे किनारे में पूरा बाढ़ आ गया था। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर पर आवर बहुत स्पीड होता है। लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर, 36 घंटा तक इतना हवा चला था, इतना स्पीड से। These high velocity winds uprooted trees and damaged the kacha houses. Rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away. तो आपके कारखानों के पूरे छत उड़ गए, घर कच्चे घर पूरे टूट गए, छत उड़ गए। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कंप्लीटली। स्नैप्ड कंप्लीटली मीन्स पूरा बंद हो गया, पूरा ठप, पूरा टूट फूट के पोल वोल गिर गए। हेवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। 3 दिन लगातार पूरा बहुत जोर बारिश हुआ। दीज रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा। और এই সব বৃষ্টি থেকে जो मेन में नदी था, मेन नदीते পুরো বান চলে এসেছিল। द साइक्लोनिक विंड्स कॉज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर। तो साइक्लोन की वजह से जो समुद्र की लहरें हुई, समुद्र का लहर এত ঢেউ উঁচু উঁচু ছিল, বেশি ছিল, समुद्र से 20 किलोमीटर आगे तक पूरा पानी चला गया था। समुद्र से, समुद्र के किनारे से धारे থেকে কিন্তু 20 किलोमीटर পর্যন্ত চলে গেছিল, किलोमीटर इनलैंड, एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज। और इससे बहुत ज्यादा क्षति आपका किनारों में हुआ था। 20 किलोमीटर बहुत होता है, 20 किलोमीटर समझ लो यहाँ से, हमारे यहाँ से कई दूर, मतलब यहाँ से बर्धमान स्टेशन है 5 किलोमीटर, तो यहाँ से उसका 4 टाइम्स कर लो आप। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव इंक्लूडेड सडनली एंड कॉज मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स यानी धान का जो फसल है, तो 7 से 10 मीटर इतना ऊंचा आपका जो लहर है, तो बड़ो बड़ो ढेउ पुरो धानेर खेतगुलो के पुरो डुबी दीछिल एकदम। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो ये क्यों हुआ था? आपका डिप्रेशन यानी लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, कहां पर? गल्फ ऑफ थाईलैंड में, वहां पर उसकी वजह से ये साइक्लोन बना था, नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 25 अक्टूबर 1999। तो 25 अक्टूबर 1999 में वहां पर लो डिप्रेशन आपका क्रिएट हुआ था पोर्ट ब्लेयर के पास में, गल्फ ऑफ थाईलैंड ने, उससे ये बना था। एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और वहां से ये कहां को चला गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन इरासामा एंड बालिकुडा इन उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM।
तो 29 अक्टूबर 10:30 बजे सुबह लगभग ये हिराशिमा, बालिकुडा, ये सब जगहों में ये पहले हिट किया। The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. तो 28 जो शहर है समुद्र के किनारे, भुवनेश्वर के कई सारे जगह, कटक के जगह, उनको पूरा डुबो दिया। About 13 million people were affected. 13 million people को पूरा क्षति हुआ था। A large number of livestock were killed. Livestock यानी जीव जंतु, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, छागोल एগুলো মারা গেছিল। Standing crops of paddy, vegetables and fruits were heavily damaged. और कई सारे फसल, पेड़ पौधे पूरे नष्ट हो गए। Due to salinization caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile. क्या हुआ? Due to salinization यानी समुद्रे नोनता जल, समुद्र का नमकीन पानी आपका तो पूरा बहुत जमीन तक फैल गया। अब जमीन में क्या आ गया? जमीन में नमक आ गया भाई, नून चले लो, और नमक वाली जमीन में तो भाई पौधा नहीं हो सकते, तो इससे बहुत सारा जमीन जो है पूरा इनफर्टाइल हो गया। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल्ट, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशंस हैव डिसअपीयर्ड। बहुत सारे ट्रैक्ट्स जगह को बोलते, जमीन को बोलते, जमीके বলা হয় অনেক বড় বড় জমি, শাল গাছে, টিক গাছে, বাঁশ গাছে পুরো गायब हो गए, पूरे खत्म हो गए। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिस्ड। और पारादीप और कोणार्क इसके बीच में जितने मैंग्रोव फॉरेस्ट थे वो सब गायब हो गए, सब उड़ गए एकदम। नेक्स्ट वी हैव मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। तो जब हीट होता है पानी तो क्या बनता है भाई? वाटर वेपर बनता है। Moisture in the air at any time is known as humidity. What is, mark this up. So what is humidity? হাওয়ার মধ্যে যে ময়েশ্চারটা থাকে, যে ওয়াটার ভেপারটা থাকে, সেটাকে আমরা বলি humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. যখন হাওয়ার মধ্যে প্রচুর ওয়াটার ভেপার থাকে তখন বলি আমরা humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. तो जैसे जैसे हवा आपका और ज्यादा गर्म होता है, बेसी गरम है, हवाटा हिट है तो और ज्यादा इवेपोरेशन होता है, बेसी इवेपोरेशन है और बेसी ह्यूमिड हो जाए। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडीज डज नॉट इवेपोरेट इजीली मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो ह्यूमिड डे में क्या होता है? कपड़े जल्दी सूखते नहीं है और हमारा पसीना भी जल्दी सूखता नहीं, जिससे हमको बहुत तकलीफ होता है, कष्ट होता है। When the water vapor rises, it starts cooling. तो जब भाप ऊपर जाता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर ऊपर ये की है ठंडा हो जाए। The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. So water condenses, water vapor, and forms droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. What are clouds? Clouds भी ये बहुत सारे पानी की बूंदे मिलके आपके clouds बनते हैं। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. तो যখন এগুলো ड्रॉप्स गुलो अनेक भारी हो जाए तब ये पानी की बूंद जुड़ के आपके बारिश के रूप में गिरने लगते नीचे। That is known as precipitation. Precipitation बहुत टाइप के होते हैं, रेन, लिक्विड वाटर, स्नो, हेल, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. तो जब যখন जेट प्लेन गुलो आकाशे उड़े पिछन दिके पूरा व्हाइट व्हाइट पूरा लाइन देखते पाए, वो क्या है उसका भाई? उसका जो फ्यूल जलता है যখন ওটার पेट्रोल डिजल केरोसिन যেটা দিয়ে फ्यूल দিয়ে চলে তখন ওটা কন্ডেন্স হয়ে যায়, উপরে টেম্পারেচারটা কম হয়, কন্ডেন্স হয়ে যায়, দেখুন তখন ওইটা দেখা যায় আর ওটাও কিছুক্ষণ পর আবার ভ্যানিশ হয়ে যায়। প্রেসিপিটেশন দেন কামস ডাউন টু দ্য আর্থ ইন লিকুইড ফর্ম ইজ কল্ড রেন। তো প্রেসিপিটেশন যেটা লিকুইড ফর্মে হয় দ্যাট ইজ কল্ড রেন। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और प्लांट्स हमारे पानी बचाने में मदद करते हैं। When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. तो पहाड़े यदि अनेक गाछगुलो केटे देওয়া হয়, so due to soil erosion, पूरा पानी पूरा बह के पूरा नीचे आ जाएगा, नीचे चले आसे नीचे वाले इलाकों में बाढ़ आ जाएगा।
On the basis of mechanism, there are three types of rainfall. How many? Three types of rainfall: the convectional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. এগুলো তোরা পরে ক্লাসে পড়বি। মার্ক দিস আপ, এটা মার্ক করে রাখবে। থ্রি টাইপস অফ রেনফল। Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity, scarcity का स्पेलिंग गलत देख रहा हूं यहां पर, SCARCITY, SCARCYTY, scarcity माने अभाव, कमी, एंड ड्रॉट अकर, तो इससे आपका पानी का कमी हो जाएगा, और ड्रॉट माने अकाल, सूखा पड़ जाएगा। On the other hand, if it is more, flood takes place. आज यदि बेसी जल है, बाढ़ चलाया जाएगा। देखो, other, do you know other forms of precipitation are snow, sleet and hail. Hail तो देखो बर्फ गिरते, जो ओले गिरते हैं, that is called hail. All right, let me discuss the MCQs first. Question number 2-1. Which of the following gases protect us from harmful sun rays? Ozone, yes. Number 2, the most important layer of the atmosphere is troposphere. Number 3, which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? Stratosphere. Number 4, as we go up the layers of the atmosphere, the pressure decreases. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, pressure कम होता जाता है, कम होते থাকে. Number 5, आज की पढ़ालम, when precipitation comes down on the earth in the liquid form, it is called rain. Yes. अच्छा, मैचिंग देखो, नंबर मैचिंग करबे। ट्रेड विंड्स, परमानेंट विंड, लू, लोकल विंड, मानसून, सीजनल विंड, एंड विंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। राइट, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स you can copy from here and write and learn these.